so I don't remember that thing. So that's why. सर शायद हम लोग जी मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। आई फ्लिप लेफ्ट फ्लॉप ऑफ। नहीं पढ़ा है? मल्टीप्लेक्सर। फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़ा है? नो नो, यही सर बाकी है। सर हो ओके, गया फ्लिप सर। फ्लॉप सर हो गया, सर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया। है? हो गया सर फ्लिप फ्लॉप। यस सर, फ्लिप फ्लिप फ्लॉप हो फ्लॉप गया। ओके ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द शिफ्ट रजिस्टर। सर ग्रीन कोड सर बाकी है शायद, तो ग्रे कोड वाला सर बाकी है अभी। हाँ कर लेंगे, पहले शिफ्ट रजिस्टर स्टार्ट करते हैं। सो सर टोटल कितने एक्सपेरिमेंट है? 10। ओके सर। Okay, so shift registers are meant for shifting the data from left to right or right to left. Okay, did you get it? Why shift registers are made? Hello? Okay, so there may be few types of shift registers will be there. So if I just classify the shift registers in the various way, we can classify the shift registers in this way. So the shift registers can be classified in 4 categories. So the first shift register is known as serial in, serial out shift register. So in short, sometimes it is known as SISO, serial in, serial out, serial in, serial out. Okay. The second shift register which is there is known as serial in, parallel out. So it is known as SIPO, serial in, parallel out. The third register is named as parallel in, parallel out. SIPO. Fourth one is known as parallel in, serial out. ISO. These 4 registers are there. Did you get it? How many shift registers are there? Yes sir. Okay. So we are going to discuss each shift registers in brief, how they are working and how we are going to design that shift register. Yes. सर योर स्क्रीन विजुअल और नॉट? नहीं है। So the shift registers are made up of D flip-flops. So before starting that shift register topic, you need to understand the working of D flip-flop. So the D flip-flop QN and QN plus 1. So first we will design its state table, then we will see the excitation table, then we are going to see the first shift register. So if D is 0, Qn can be 0 or 1. So 0 means it will be in reset mode, so the next data will be always 0. If you apply 1, Qn can be 0, Qn can be 1. So it will be in set mode. Okay. So your flip-flop, this is known as
state table of D flip-flop. Okay, this is the first thing. Now the second thing we need to see the excitation table of state D flip-flop. So how it is has been done. So the excitation table Qn plus 1 T. If both are 0, what will be the output? If 0 1, then what will be the output? If 1 0, then what will be the D? And if 1 1, what will be the D? So it is reset. So you have to apply 0. If it is set, so you have to apply 1. You have to apply 0. You have to apply 1. So this can be also, you can say D is equal to Qn plus 1. So D is the easiest flip-flop to understand because the next state will be equals to the D input. So that is the easiest part to remember it. So whatever the next state will be there, that will be your D input. So that is the brief introduction of D flip-flop. Now we will see how the D flip-flop symbol has been designed. So D flip-flop is having one input, that is D, one clock, so this is clock, then output Q and Q bar. So there are two terms which are very important: synchronous input and asynchronous inputs. So if your input or if your output is changing with the synchronous clock input synchronously, then it is known as synchronous input. If it is independent of clock, that is known as asynchronous inputs. So here D is synchronous input, and we are having two another signal that is known as clear or reset, or here you can have the set or preset. So these two inputs are asynchronous inputs. Now why it is called asynchronous input? If you apply 1 here, output will be 1, Q will be 1. If you apply clock equals to 0, clock equals to 1, nothing is going to happen. Your output will be remain 1. If you apply clear equals to 1, then output will be 0. So that's why it is called as asynchronous input, and D is known as synchronous input. But sometimes it can be asked like which is synchronous input, which is asynchronous input. So that's why I have defined that D flip-flop is having some asynchronous inputs and some synchronous inputs. Now in most of the figures you will not find the clear and preset signals. So it doesn't mean that it doesn't have that signals. But for the simplification purpose, we are not drawing those signals. Okay, so if anything having more than 2 or 3 signals, it is difficult to understand that thing. So that's why for the simplification purpose, we are not drawing this one. We are eliminating this thing. Now we are going to start the first topic, that is serial in, serial out, shift register. Now serial in, serial out, shift register, how it looks like. That means you will have one input and one output. So this is D and this is your input. Now this is Q, this is Q bar. This input will be applied to the next stage of flip-flop. This is D, this is Q, this is Q bar.
Then again, next flip flop. Q and Q bar. D, Q and Q bar. Then we are having clock. So this is clock, and clock will be synchronous to all the flip flops. So सब clock, सब flip flop को clock एक साथ जाएगी. This will be the clock. Okay, is it clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so एक input है तो output भी एक ही होगा. So this is output. So Yeah. you can see it's a kind of hospital. Say for example, if you enter in a hospital and there is a one doctor and there is a queue. Now 4 people are standing over there. So what will happen? There will be one entry and one exit will be there. So one people will get entered from that door, and if it is having 4 rooms, so suppose कर लो ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, ये चौथा रूम है, और हर एक रूम में एक ही आदमी रह सकता है. So in every room there only one person can stay. So what will happen? The first person which is entered from the input side, he will enter in the first room. पहले रूम में एंटर होगा, बाकी तो खाली रहेंगे 2 3 4. नाउ जैसे ही पहले रूम से वो दूसरे रूम में जाएगा, नाउ वंस he is going to enter from first to second room, the second input will be entered in the first room. Same way, when second input will be entered in the third room, the first will be entered in the second, and the input will be here. So the first input will be available after 4 cycles. So enter कब करना है? So say for example, आप ऐसा exam करो, there is a bell. Okay, when I am ringing that bell, you can enter in that room. Okay, so when you have this person, so for example, I will take 4 names, अभिषेक, अविनाश, हर्षित and मणिरत्न. ठीक है, तो पहले अभिषेक आया, so अभिषेक इस रूम में एंटर हुआ, बाकी 3 बाहर खड़े रहेंगे. ठीक है, फिर मणिरत्न आया, तो अभिषेक जब तक सेकंड रूम में नहीं जाएगा तब तक मणिरत्न यहाँ एंटर नहीं हो सकता. So he has to wait up to that period when Abhishek moves from room 1 to room 2. So he need to wait. So what will happen? How he is going to move? उसको कैसे पता चलेगा कि I need to move in the second room? So there is a ring. So that ring is similar to the clock pulse. So if you apply the clock, he is going to move in the second room. Now the first room is vacant. Now the first he can occupy the first room. So in this way, the data is moving in this shift registers. Is it understood how it is moving? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yeah, anyone is having doubt? तो अब सपोज करो कि अभिषेक है, वो पहले रूम में एंटर हुआ, तो कितने रिंग के बाद वो बाहर आएगा? 4. 13. 4 पे So बात. हाँ, so he will be available at the output after 4 rings. So the data which is entered in the first flip flop, it will be available at the output after 4 clock cycles. So each, yes. सर क्लॉक जो है सर सारे में कॉमन है ना? हाँ, सभी में कॉमन, तो भी तो है, तभी तो एंटर करेंगे ना. देखो, अगर सब में अलग अलग क्लॉक दूंगा तो क्या होगा? पहले को दूसरा पता चलेगा, दूसरे को कुछ और पता चलेगा. अभी चारों को एक ही रिंग सुनाई देती है, तो जैसे ही पहला वाला दूसरे में जाता है, जो इनपुट में वो पहले में आ जाता है. सब समझ में आया? yes. समझ में आया कि अगर चारों को अलग अलग नहीं दे सकता ना, नहीं तो क्या होगा, एक पहले एंटर हो जाएगा, दूसरा रूम खाली रहेगा, उसके लिए फिर दूसरी रिंग बजानी पड़ेगी. तो कैसे पता चलेगा? तो इससे चारों को एक ही रिंग सुनाई देती है. सर हाँ बोलो. तो ऐसे यंत्र का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? क्या ऐसे यंत्र का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? if you will use this kind of instruments or this kind of shift registers in FIFOs, first in first out shift registers. उसमें क्या होता है कि एक जगह से डेटा आ रहा है, so data is coming from here. Now the data coming in form of burst, so ये continuous नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वो डेटा कुछ देर के लिए आता है, फिर कुछ देर के लिए आइडल रहता है. तो क्या करेंगे, कुछ देर के लिए वो डेटा यहाँ स्टोर कर लेंगे. Once this data is stored here, then we are going to read that data one by one. So आपका कोई data loss नहीं होगा. Say for example, just I will tell you one example. I am throwing a ball at a rate of 10 balls per second, and you are capable of
collecting that ball at 5 balls per second. So how many balls are remaining? 5 balls. So they will be missed. वो कोई नहीं पकड़ पाएगा, तो उसको क्या करके रख सकते हैं हम? स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और हाँ फिर बाद में उसको रीड कर सकते हैं वन बाय वन। सो वहाँ पे इसका यूज होता है। So is it, have you understood that thing? Yes sir. Sir, like RAM sir, like RAM. RAM is not, आप बोल सकते हो, लेकिन उसका ऑपरेशन थोड़ा अलग होता है। सर इसका टाइम लगभग, वो टाइम डिपेंड करता है क्लॉक साइकिल पर कि कितने का पीरियड है। ये पहली रिंग के बाद दूसरी रिंग कब आएगी उस पर डिपेंड करेगा। सिंपल सा ही एग्जांपल है बेटा, अगर आप 100 लोग क्यू में खड़े हो, अगर मैं बोलूंगा पहली रिंग के बाद आपको जाना है, तो आप 100 रिंग जो क्यू है वो कब खाली होगी? 100 रिंग के बाद, है ना? जी सर। हाँ, तो एक रिंग में अगर 1 सेकंड लगता है तो 100 रिंग में कितना लगेगा? 100 क्यू में 100 लोगों के लिए 100 सेकंड। अगर वही मैंने बोला कि वो 1 सेकंड की जगह आधा सेकंड लगता है, तो पूरा क्यू कितनी देर में खाली हो जाएगा? 50 सेकंड। तो बस दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। हाँ बोलो। एनी क्वेश्चंस? नाउ सेकंड शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट। पैरेलल आउट में इसमें और पैरेलल आउट में डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पर कितने आउटपुट हैं? 1 पैरेलल में 4 आउटपुट हो गए। एक आउटपुट यहाँ से भी होगा, एक आउटपुट यहाँ से भी होगा, एक आउटपुट यहाँ से भी होगा। तो दिस विल बी Q3, Q2, Q1, Q0. So this will be known as serial input parallel out. अब आउटपुट सारे पैरेलल अवेलेबल है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? अब सपोज करो कि मेरे को पहला का डेटा दूसरे डेटा से कंपेयर करना है, तो क्या कर सकता हूँ? Q3 को Q2 से कंपेयर कर लूंगा, whether it is same or it is different. So there we are using this kind of shift register. Now this kind of application is widely used in compressing or sending an image over internet. Why? Like if 2 pixels are having the same value, then we are not sending any data over there. So we are sending only one. So that one will be considered as that the previous data is same as this data. So वो क्या करेगा? जो previous data उसको copy कर देगा। तो ये suppose करो ये white screen है, यहीं पर आप इसी example को लो। So how many white pixels will be there? Lots of. यहाँ पे भी white है, यहाँ पे भी white है, यहाँ पे भी white है। तो मेरे को हर एक बार यही एक white को भेजने के लिए आपको कितना डेटा भेजना पड़ेगा? RGB के 3 कलर, R, G and B. So 8 bits, 8, 16, 24. 24 bits you are going to send over here. Now 24 bit सेंड करोगे तो क्या होगा? बहुत टाइम लगने वाला है। तो 24 बिट की जगह क्या कर सकते हैं? एक ही बिट सेंड करो और उसको बताओ कि जो पिछला 24 बिट है वो सेम है। तो क्या हो सकता है? आपका जो बिट है, नंबर ऑफ बिट्स जो सेंड करने हैं नेट पे, वो कम कर सकते हो। So that's why we are using this. Understood? Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Third one is serial in, parallel in, serial out. Parallel in, parallel out. First we will study that. ये फ्लिप फ्लॉप कितने बिट स्टोर कर सकता है बेटा? सर 8 बिट। 4 बिट। जितने फ्लिप फ्लॉप उतने बिट स्टोर कर सकता है। सर हाँ, जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर कर सकता है। वन फ्लिप फ्लॉप इज हैविंग ए कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ओनली। तो सर हाँ, इसमें इनपुट और आउटपुट इक्वल होंगे ना? हाँ इसमें इक्वल होंगे। सो ये इनपुट I1, ये आउटपुट Q1, ये इनपुट I2, ये आउटपुट Q2, ये इनपुट I3, ये आउटपुट Q3, यहाँ पे इनपुट I4, ये आउटपुट Q4।
So this is known as parallel in, parallel out shift register. ठीक है, अब इसको कहाँ यूज करेंगे बताओ? इसका यूज बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है पैरेलल इन पैरेलल आउट का। इसको सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी हमको 1 बिट को स्टोर करके रखना हो या 8 बिट को स्टोर करके रखना हो, नेक्स्ट साइकिल पे आपको एग्जीक्यूट करना हो कोई डेटा, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। बाकी बहुत ज्यादा यूज है नहीं इसका। सो ये 3 तो बहुत ईजी है, ये तीनों समझने में भी ईजी है, पढ़ने में भी ईजी है, ड्रॉ करने में भी ईजी है। जिस चौथा है वो सबसे डिफिकल्ट है, पैरेलल इन सीरियल आउट। अब बताओ क्या प्रॉब्लम होगी? चलो 4 पर्सन्स है, लाइक अभिषेक, अविनाश, हर्षित एंड मुनिरत्ना। आप 4 लोग हो। अब चारों लोग एक साथ डॉक्टर के रूम में एंटर हो गए। डॉक्टर चेक तो एक को ही करेगा ना, कि चारों को एक साथ कर लेगा? एक को सर, एक को चेक किया, ठीक है, जो 1 बाय 1 पहले- चेक। हाँ पहले भाई 1 बाय 1 चेक करेगा। और उस रूम में खड़े रहने की जगह चाहिए। और अब क्या हुआ कि पहला आउटपुट बाहर निकला और मैंने 4 लोगों को और अंदर डाल दिया, तो क्या होगा? जो पहले वाले 3 थे वो तो गायब, उनका तो चेकअप होगा ही नहीं, वो तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है पैरेलल इन सीरियल आउट में। तो आपको रोक के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले 4 अंदर आओ, फिर एक एक करके बाहर जाओ, फिर जब खाली हो जाए रूम तो फिर 4 को अंदर भेजो। ऐसा करना पड़ेगा ना? Yes, sir. यस सर, हाँ, तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट यू नीड टू पैरेलल इन एंड यू नीड टू एग्जिट दोस थिंग्स। तो सीरियल आउट करना पड़ेगा। तो एक इनपुट है, तो अभी आपको बताता हूँ। एक शिफ्ट रजिस्टर्स, पहले डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो डी क्यू, ठीक है। अब डी है, डी में आप क्या काम कर सकते हो? या तो शिफ्ट कर सकते हो या तो लोड कर सकते हो। तो अब क्या है, सॉरी, पहले में तो लोड ही होगा डेटा, पहले में तो शिफ्ट हो नहीं सकता, है ना? यस सर। हाँ, तो पहला क्या होगा? अब एक लाइन बनाई मैंने, ये लिखा शिफ्ट और लोड। तो अगर 1 दूंगा तो शिफ्ट होगा और 0 दूंगा तो लोड होगा। सो पहली वाली लाइन जो है वो शिफ्ट के लिए है एंड सेकंड वाली जो लाइन है वो लोड के लिए। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. हाँ, यस यस सर, सर क्लियर। यस सर, यस। हाँ, तो ये आ गया पहला डेटा। मैं 1 लिखता हूँ डेटा के लिए, बाद में इसका नाम चेंज करूंगा, ठीक है। फर्स्ट डेटा एंटर हो गया। दूसरा फ्लिप फ्लॉप है। अब यहाँ पर जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप होगा, तो मैं 2 ही बना रहा हूँ क्योंकि 4 बनाना मुश्किल है यहाँ पर। दूसरे में डेटा एंटर भी हो सकता है और शिफ्ट भी हो सकता है, पहले से भी आ सकता है, हो सकता है दोनों। जी सर। यस तो सर। अब क्या होगा? 2 एंड गेट आएंगे, ये डेटा शिफ्ट करने के लिए और ये डेटा लोड करने के लिए। तो शिफ्ट वाला यहाँ से आएगा। शिफ्ट कौन सा डेटा होगा? पहले डेटा का शिफ्ट दूसरे में जाएगा, मतलब इस रूम में जो खड़ा है वही शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे लोड नहीं हो सकता। समझ में आया? यस सर। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा शिफ्ट से इनपुट। ये दूसरे वाले में आप लोड कर सकते हो, ये दूसरा डेटा है, दूसरा आदमी है जो लोड हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा इनपुट लोड से। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ये भी बात मैंने बोल दी कि शिफ्ट और लोड दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते। तो दोनों में से एक होगा, तो किस गेट में जाएगा? और गेट में, और ये जाएगा आपको नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप डी, फिर क्यू और क्यू बार। फिर यही स्ट्रक्चर रिपीट होगा। फिर इसके बाद जितने फ्लिप फ्लॉप का बनाना है आप उतने में बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर रिपीट होगा चला जाएगा। तो अगर आपने शिफ्ट यहाँ पर दिया, सपोज करो आपने यहाँ पर 1 दिया, ये 1 हो गया, तो ये क्या जाएगा? 0। नॉट गेट है तो क्या आएगा आउटपुट उसका? 0 सर, 0 है। Yes, ये sir. एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? ये जो क्यू है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये क्यू सपोज कर लेते हैं Q1 है, तो Q1 यहाँ पर आएगा।
क्योंकि Yes, ये sir. 1 है, ये 1 है तो यहाँ पे Q1 आ गया 1.Q1, ये 0 है तो 0.2 क्या आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस Q1 क्या 0 आएगा, यहाँ हाँ यहाँ पर Q1 आ गया। अब अगर आपने क्लॉक दी तो क्या होगा, Q1 जो है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा, तो सेकंड रूम में एंट्री होगी। तो अगर लॉजिकली आप समझ के बनाओगे तो इट्स इजी, बट इफ यू ट्राई टू मेमोराइज इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस फिगर। अगर ये 2 बिट का बनाया है, 4 बिट का आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये सर थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर शिफ्ट रजिस्टर्स। हाँ तो डिफिकल्ट है क्योंकि बताया ना कि 4 लोग एंटर हो गए तो चारों को बाहर निकलने का वेट करना पड़ेगा आपको, तो दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट। समझ में आया, 4 लोग एंटर हो गए तो 4 लोगों को निकलने के लिए वेट तो करना पड़ेगा ना। यस 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 यस। हाँ तो वो उसी का लॉजिक बना है। सर वो डायग्राम में एक चीज समझ नहीं आई सर। एक मिनट दिखाता हूँ। जैसा मैंने बनाया ना वैसा ही दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है पैरेलल इन सीरियल आउट। यस सर। यस सर। लोड हाँ, तो जितने Yes. बनाने आप उतने स्टेज का बना सकते हो। ये 4 बिट का 2 बिट बनाया के लिए है, था ना। ये 4 बिट के लिए ऐसा होगा। तो पहले में लोड में आप एंड गेट बना भी सकते हो और वो छोड़ भी सकते हो, लेकिन एंड गेट बनाने का, एंड गेट बनाओगे तो क्या होगा कि सब सिंक्रोनाइज्ड होगा, अदरवाइज ये वाला सिंक्रोनाइज नहीं होगा। दैट्स व्हाई। ओके हाँ, आप पूछो क्वेश्चंस जो है। सर ये जो यहाँ पे सेकंड एंड गेट आ रहा है सर, लोड के साथ जो कनेक्ट किए हैं सर, हाँ बताओ पूछो वो सर कहाँ से सर हो रहा है, उसका क्या लॉजिक है सर? चलो पहले तो ये फिगर कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको इसमें भी मैं बता सकूं क्या है, क्योंकि मैं फिगर बनाता हूँ तो क्या है थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। कौन है भाई ये करने वाला? ओके ठीक है, अब ये है क्या करना है, पहले लोड कर दे, चारों लोगों को अंदर घुसा दे, इसमें एंटर करना है। हेलो यस सर। हाँ, तो चारों लोगों को एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या दूं मैं यहाँ पर? 1 1 दो, 1 दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट गेट के बाद 0, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आया तो 0, ये भी 0। लोड करने के लिए 0 देना है, शिफ्ट स्लैश लोड बार है। सर जो पैरेलल इनपुट है सर, तो सर सिर्फ शिफ्ट किए बिना तो भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना पैरेलल इनपुट में, बिना शिफ्ट के, वही तो प्रॉब्लम है। शिफ्ट स्लैश LD बार है, तो लोड करना है तो 0 देना है, तो 0 दो, 0 दोगे तो यहाँ पर सब जगह 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड दिस विल बी 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। ठीक है, ये डेटा 1 है, सॉरी ये डेटा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, and this one is 4। ओके तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर पहले से 1 है, और इसका आउटपुट तो 0 ही आने वाला है, 0 0 0। नाउ सब जगह पे डेटा आ गया है 1 2 3 4। अब जैसे ही आपने क्लॉक दिया तो यहाँ पे स्टोर हो गया 1, यहाँ पे हो गया स्टोर 2, इसकी हो गया स्टोर 3, ये हो गया स्टोर 4। अब जैसे ही स्टोर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर स्टोर है तो आप यही प्रोसेस नहीं कर सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा, पिछले में क्या दिया था 0, अब 1 दो। So now we are going to apply 1। So if you apply 1, यहाँ पर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, मतलब 1 कहाँ पे अवेलेबल होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी डेटा हो उससे कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर क्या आएगा 0, so ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। अब यहाँ पर नया डेटा भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 ही आने वाला है। यहाँ पर आएगा 1,
यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब आपने क्लॉक दिया तो क्या होगा, ये 1 इसका आउटपुट है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो अब ये 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसमें, ये 2 किस में शिफ्ट हो जाएगा, इसमें, और ये 3 किस में शिफ्ट हो जाएगा, इसमें। अगेन फिर आपको यही क्लॉक देनी है, तो फिर क्लॉक दोगे तो क्या होगा, नया डेटा तो आ नहीं सकता, तो ये वाला 1 जो है इसमें जो आ गया 1 वो इसमें चला जाएगा, और इसमें से 2 इसमें चला जाएगा, फिर क्या होगा, ये 2 इसमें से चला जाएगा बाहर, और फिर 1 इसमें से चला जाएगा, तो सब बाहर हो जाएंगे, तब फिर नया डेटा लोड कर सकते हो। So did you get it? 50% at least, 50-60%. सर हाँ, सर अगर कोई डायग्राम सर एसिंक्रोनस है सर तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है सर? asynchronous is independent of clock, so you don't have to worry about the clock first. So that's why. वो बिना क्लॉक के चलेगा। Explain shift registers. Write a short note on shift register, or write a short note on parallel in serial out shift register, or serial in parallel out shift register. कोई भी एक पूछा जा सकता है, या सभी पूछ सकते हैं। 7 marks का होगा तो सब होगा। If they are asking in 4 marks, they can ask anyone. Okay, so now you can take a break of 5 minutes and you can see all those shift registers, and you can search out on the Google. You will find all those figures, and if you find any difficulty, let me know. So we are going to revise that thing if you don't able to understand. Okay, 5 minute लो. We will back at 12:50. Okay.
Shall we resume? Yes, sir. Okay. यस सर। यस सर। So कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर एक डाउट सर है मेरे को सर, प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट से सर। प्रीवियस लास्ट में लेंगे। ये सर पहले लास्ट जो, की बात। हाँ पहले जो अभी है वो खत्म कर लो। ओके, सो इसमें से किसी को डाउट है कैसे करना है, क्या करना है? Okay, so just here we are having one shift register, 4-bit serial in parallel out. एक साथ आप एंटर कर सकते हो, एक जगह से एंटर करोगे और पैरेलली आपको आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज योर सीरियल इनपुट, आप 0 दे सकते हो या 1 दे सकते हो। देन यू कैन अप्लाई द क्लॉक। वी आर हैविंग टू अनदर सिग्नल्स, प्रीसेट एंड रीसेट, जो मैंने बताया कि अगर आप ये एसिंक्रोनस होते हैं, जैसा अभी आपको दिखाता हूँ। सो वंस यू क्लिक ऑन द गेट ट्री, आपने 1 दिया, क्लॉक दिया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर क्लॉक दिया, सेकंड में भी चला गया, ठीक है। अब अगर रीसेट करूंगा तो क्या होगा? बोलो, रीसेट मतलब क्या होता है? 0 हो जाएगा सर। हाँ, सभी फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएंगे, आप सर ऑल 0 हो जाएगा। सब 0 हो जाएंगे। अब आप जब तक रीसेट रहेगा ना, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी करोगे तो भी वो डेटा कहीं जाएगा ही नहीं। सेम वे अगर आप रीसेट कर देते हो तो सभी के सभी 1 हो जाएंगे। प्रीसेट है एक्चुअली, सभी के सभी 1 हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट। इसलिए इनको बोलते हैं एसिंक्रोनस। क्लॉक पे सिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं होता, ठीक है। इसके लिए इसका नाम एसिंक्रोनस इनपुट्स पड़ा है और बाकी दोनों के नाम सिंक्रोनस इनपुट्स पड़े। ओके, नाउ इफ यू अप्लाई द क्लॉक, दिस विल बी 1। ये पहला जो डेटा इनपुट में था वो सेकंड में आ गया, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आ गया। अब दूसरा डेटा 0 दिया, 0 दिया, तो अब क्या होगा बोलो? Q3 में क्या आएगा, Q2 में क्या आएगा? Q3 में 0 और सर Q2 में 1 हो जाएगा सर। हाँ, सो दैट्स देयर। नाउ अगेन 1 दिया, तो अब क्या होगा? सर Q2 में 1 और सर और Q1 में भी 1 होगा सर। Q1 में 1 आएगा, Q3 में 1 आएगा। हाँ सही है, बाकी सब 0। अगर अभी भी 1 है तो फिर Q3, Q2 और Q0 में 1 होगा। दिस यू कैन ऐड दिस हियर, कितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स में गया है, तो ये सब आप कर सकते हो। सो यू नीड टू प्रिपेयर दैट्स इट। ये शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पे खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। ओके, आ गया सबको समझ में? यस सर। यस यस सर। ओके, इजी है, लेकिन मैंने वही बोला कि अगर आप इसको समझ के करोगे बहुत इजी है, आप अगर आप कुछ याद करने बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो याद नहीं करना, नहीं समझ में आया तो 2 बार, एक बार बिना ट्राई करे पूछोगे ना तो कुछ नहीं पता चलेगा। मैं कितना भी पढ़ा लूं, अगर आप खुद से अपने पेन और पेपर लेके नहीं बैठते तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ रविंद्र, ठीक है, चलो। अब इसके अलावा कौन सा एक्सपेरिमेंट बाकी है वो भी बोल दो, तो वो भी खत्म करा देते हैं। इस बार लैब सारी खत्म हो जाए। ग्रे कोड वाला लास्ट है वही। तो 10 हो जाएंगे ना टोटल? यस यस हो जाएगा सर। बस हाँ, तो वो 10 ही करने हैं। चलो, ये तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा क्योंकि ये आपको पहले किया हुआ है। बाइनरी टू ग्रे क्या करते हैं? ग्रे में क्या फर्क है, बाइनरी में क्या फर्क है, बताओ। सर नैंड गेट का वो कन्वर्जन करते हैं सर। देखो, पहले तो बाइनरी टू ग्रे में एक प्रॉब्लम ये है कि ग्रे कोड आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या आएगा। तो पहले तो टेबल प्रिपेयर कर लेना है। ये टेबल प्रिपेयर कर लो, बाइनरी टू ग्रे। ये टेबल प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं? यस सर। कर सकते हो सभी? यस सर का यस यस। ये मैंने बताया था, B3 होगा वही G3 होगा। G2 क्या होगा? B3 एक्सक्लूसिव और B2। G1 क्या होगा? B2 एक्सक्लूसिव और B1। और G0 क्या होगा? B1 एक्सक्लूसिव और B0। तो पहला B3 और G3 दोनों सेम होगा। देखो टेबल में B3 और G3 सेम होगा, 8 0 8 1 दिख रहा है? यस सर। अब G2 होगा वो Yes, sir. B3 और B2 का एक्सक्लूसिव और होगा, 0 0 का एक्सक्लूसिव और 0 0 0 का 0 0 0 का 0 0 0 का 0, देन 0 1 का 1 0 1 का 1 0 1 का 1 0 1 का 1।
10 का 1, 10 का 1, 10 का 1, 11 का 0, 0, 0, 0। तो पहले 4 0, फिर 8 1, फिर 4 0, ऐसा होगा G2 है। यस सर। G1 होगा B2 एक्सक्लूसिव और B1। तो 0 0 0, 0 0 0, 0 1 1, 0 1 1, 1 0 1, 1 0 1। पहले 2 0, फिर 4 1, फिर 1 1 0, 1 1 0, 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 4 0, फिर 0 1 1, 0 1 1, 1 0 1, 1 0 1, फिर 4 1, 1 1 0, 1 1 0। ये होगा। इसी तरह से G0 भी फाइंड कर सकते हो। ये टेबल बना लो, फिर G3 का के मैप बनाओ, G2 का के मैप बनाओ, G1 का के मैप बनाओ, G0 का के मैप, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर ग्रे टू बाइनरी कर रहा है तो अगेन ये टेबल बनाओ और टेबल से फिर चारों का के मैप बनाओ, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि हमको सर्किट पहले ही पता है इसमें, ठीक है, इसलिए आप आंसर बनाओगे तो भी वही आने वाला है और सर्किट से आंसर फाइंड करोगे तो भी वही चीज आएगी। तो आपको इसमें कुछ ज्यादा करने लायक है नहीं। नैंड गेट से बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने सिखाया है उसी की। इसने नैंड गेट से लिखा है पर नैंड गेट से बनाया नहीं है, इसने बनाया है एक्सऑर गेट से ही है। सिमुलेशन में जाओगे, सो इफ यू फाइंड बाइनरी टू ग्रे, यहाँ पे आपको नैंड गेट्स मिलेंगे, ये सब एक्सऑर गेट ही है, ठीक है। तो पहले सप्लाई दे दो, ठीक है। अब बाइनरी में चारों जीरो है, चारों जीरो के लिए क्या आउटपुट आएगा वो चेक कर लो। चारों जीरो के लिए चारों जीरो, तो आपको ये टेबल जो दिया है उससे मैच करना है कि सही आ रहा है कि नहीं। तो चारों जीरो के लिए चारों जीरो है। अगर 3 0 1 1 है तो 0 0 0 1 ही आने वाला है, तो वो भी चेक कर लो। 0 0 0 1 है तो यहाँ पे ऐड करो 0, यू विल गेट 0 0 0 1। ओके, नाउ फिर तीसरा केस ले लो 0 0 1 0, तो यू विल गेट 0 0 1 1, आपको वो मिलेगा। सो ये देखो 0 0 1 1। इस तरह से आप 16 के 16 कॉम्बिनेशन ट्राई करके बना सकते हो। सेम वे ग्रे टू बाइनरी, ये दोनों उस तरीके से आप कर सकते हो। इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है आपके लिए। आपने ये पहले ही पढ़ लिया है बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी थ्योरी क्लास में, तो यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है। एक बार आप करके देखो, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन टेल मी कि सर नहीं हो रहा, तो मैं वापस आपको समझाऊंगा। सो ये एक्सपेरिमेंट शिफ्ट रजिस्टर्स, ये दोनों आपको परफॉर्म करने हैं। चलो, खाली इससे नहीं होगा, थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। वी नीड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो अब मैं कुछ कुछ टॉपिक पूछता जाऊंगा और रिवीजन चालू करना है। सो वी विल गोइंग टू रिवाइज द सेकंड चैप्टर, ठीक है। यस सर। ओके, Yes, sir. चलो पहले मल्टीप्लेक्सर कौन बताएगा? मल्टीप्लेक्सर का यस दूसरा सर। दूसरा नाम क्या है? It is also known as data selector. Got it? मल्टीप्लेक्सर को दूसरे तरीके से डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। सो मल्टीप्लेक्सर इज हैविंग मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। So this is I3, I2, I1, उल्टा लिखते हैं, I0, I1, I2, I3. This is Y. This is selection lines. So this is known as selection lines. This is known as input. This is known as output.
if you are having n number of selection line, you will have 2 raised to power n number of output. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. दो सिलेक्शन लाइन तो कितने इनपुट होंगे? 4. So Four, sir. sir. Four. this is known as 4 cross 1 mux. Multiplex. हाँ, इसको बोलते हैं 4 cross 1 मल्टीप्लेक्सर. इतना हो गया, इतना सबको समझ में आ गया? तो कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. No doubt, sir. ओके. नाउ सेकंड चीज आती है ट्रुथ टेबल. सो ट्रुथ टेबल बनाना है तो ट्रुथ टेबल के लिए हो गया. जस्ट अ मिनट. Okay. Now Yes, I'm sir. audible? Yes, audible, sir. हेलो. ओके. पीसी हैंग हो गया था इसलिए. ठीक है, तो सिलेक्शन लाइन कितने हैं? 2. No, sir. दो. S0, S1 एंड S0 और आउटपुट 1 Y. सो 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सिलेक्शन लाइन के. 0 0 0 1 1 0 1 1. ये ऑपरेशन कैसे करता है? व्हेन यू सिलेक्ट 0 0, दिस इनपुट विल बी कनेक्टेड विद आउटपुट. अगर आपने 0 1 दिया तो ये जो इनपुट है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा. फिर 1 0 दिया तो इससे कनेक्ट हो जाएगा और 1 1 दिया तो इससे कनेक्ट हो जाएगा. सो जब 0 0 दोगे तो आउटपुट पे क्या आएगा? जो पहला डेटा है I0. I0. 0 1 दोगे तो I1. then I2. I2, I3. तो दिस इज ट्रुथ टेबल TT. ठीक है. अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन Y क्या लिखेंगे? सो एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको एक एक टर्म देखना. एक रो को देखो अच्छे से. तो यू हैव टू इवैल्यूएट एवरी रो. तो सर पहला रो देखोगे तो क्या है? S1 जीरो मतलब मैंने बोला था. हाँ S1 dash S0 dash I0. हाँ. So if you have 0 here, then you have to replace by S1 bar. So S1 bar, S1 का वेरिएबल क्या है? 0. S0 का भी वेरिएबल क्या है? 0. तो दोनों में बार लगेगा. अगर 1 होगा था तो बार नहीं लेते. S1 बार then S0 बार multiplied by I0 input. Second term S1 बार S0 S0 I1. I1. The third S1 bar S1 S0 bar I2. Fourth S1 S0 I3. So you have to include plus sign everywhere. ये आपका Y का एक्सप्रेशन है. ओके. क्लियर अप टू दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है? Everyone is clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So now this is S0. फिगर कैसे बनाएंगे? ये S0 बार हो गया. ये S0 this is S0 bar. This is S1. This is S1 bar. ठीक है. ये 4 मिल गए. पहला क्या चाहिए? देखो S0 बार S1 बार चाहिए तो उसको वहां पे क्रॉस कर लो. यहाँ पे S0 बार आ गया, यहाँ पे S1 बार आ गया. यहाँ से लाइन खींच लो और उसके साथ क्या चाहिए? I0. तो I0 बार से बना लो. तीनों के बीच में डॉट है. डॉट मतलब एंड गेट. तो ये पहला हो गया आउटपुट. फिर क्या चाहिए? दूसरा S1 बार S0 बार I1. S1 बार यहाँ पर है, S0 यहाँ पर है और I1 यहाँ से ले लो. तीनों के बीच में एंड गेट और सभी इनपुट और गेट में. तो ये आपको आउटपुट Y मिल जाएगा. अभी 2 और बाकी है. I1 I0 I1 ही बनाया मैंने. तीसरा I2 क्या है? S1 S0 बार. सो S0 बार S1 एंड I3.
फिर चौथा S1, S0 एंड I3। तो ये आपका सर्किट डायग्राम बन जाए। सो ये हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर। तो इतना लिखोगे तो 7 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे पहला डायग्राम बनाया तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एक्सप्रेशन और ये लिखा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स हो गए, और ये लिखा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 7 मार्क्स ऐसे मिलेंगे। गॉट इट? एनी डाउट्स? यस नो सर। डाउट सर। ओके, तो चलो मल्टीप्लेक्सर के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलो आंसर करो फर्स्ट क्वेश्चन का। डी होगा सर। D sir. सर बी हाँ, होगा सर। सर, बी सर। क्यों डी होगा ये बताओ तो जरा। सर बी सर, बी बोल रहे हैं सर। बी होगा, ये मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैनी सिग्नल इनटू वन, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। डिकोडर और एनकोडर का बात ही कहाँ आया मल्टीप्लेक्सर में, ये बताओ। ठीक है, थोड़ा वाइजली सोचने का कि मल्टीप्लेक्सर अलग डिवाइस है, एनकोडर डिकोडर अलग डिवाइस है, तो दोनों को मिक्स क्यों करना है? समझ में आया? यस सर, बी। हाँ, तो कभी भी कोई 2 डिवाइस को मिक्स मत करना। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, which combinational circuit is rewound by selecting a single input from the multiple inputs and directing information to the output line? सर कौन सा? ए। सी। सर डाटा फैक्टर। ए सी। अच्छा, ठीक है, डेटा सिलेक्टर, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का नाम ही डेटा सिलेक्टर है। समझ में आया? तो कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इनपुट सर। Input sir. ठीक है, ये नहीं पूछ सके, ये जाने दो। हाँ, यहाँ 7th क्वेश्चन का आंसर, B sir. बी सर। ओके, यस करेक्ट। बी। सर बी सर, बी। 8th, जी। selected lines, yes. 9th, जी। D sir. B, yes. 10th, 3 जी। D sir. डी सर, डी। D, 3 ठीक है। सो ये देखो, हाउ मेनी नॉट गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 4x1 मल्टीप्लेक्सर। हमने बनाया ही, कितने नॉट गेट बनाए थे? 3 सर। कितने नॉट गेट है देखो तो जरा 4x1 2 sir. 2 2। 2, जितने सिलेक्शन लाइन उतने नॉट गेट, ठीक है। यस सर। In 4x1 multiplexer, C1 equals to 0, C0 equals to 1, then out time will be जीरो वन में क्या आउटपुट आएगा? सर जीरो आएगा। वन। x2 सर। x2 यहाँ देख, हाँ x2 नहीं, x1 आएगा, यस सर। Yes, 1 आएगा, यस सर, x1, 1 वाला होगा। हाँ 1 में x3 आएगा। सो बस इस तरह के क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लेक्सर्स में पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? सर उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था। सर एमसीक्यू में सर। वो हाँ,
लास्ट क्वेश्चन एनेबल वाले नहीं पूछ जाएंगे बेटा आपको, इसलिए छोड़ दिया। उस हो क्या सर? कंप्यूटर वालों के लिए सर होते आंसर क्या होगा? या the enable input is known as select input, decoded input, strobe. वो आपको नहीं पूछ जा सकते, वो आप टेंशन मत लो, वो दूसरे चीज के लिए यूज होते हैं। एनेबल भी होता है, काफी सारे अलग सिग्नल्स भी होते हैं, तो वो सब सिग्नल्स आपको पढ़ने नहीं होते, आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, सेकंड है डीमल्टीप्लेक्सर। also known as data distributor। ठीक है, सो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, एक इनपुट इसका अपोजिट होगा सर, अपोजिट होगा। बस अपोजिट होगा। सिलेक्शन लाइन्स, S1, S0, E, Y0, Y1, Y2 एंड Y3। फिर इसका ट्रुथ टेबल बनेगा, D, Y0, Y3, Y2। आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, मैं तो ऐसे ही कहीं से भी स्टार्ट कर लिया है। आप YCO से स्टार्ट करोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। सॉरी, यहाँ डी नहीं, सिलेक्शन लाइन्स आएंगे, सिलेक्शन लाइन्स। S1, S0, 4 आउटपुट है और 2 सिलेक्शन है, तो 0 0 क्या आएगा, Y0 0 0 0 D, Y0 पर D आएगा, 0 1 0 0 D0, Y1 पर D आएगा, 1 0 यस सर। 0 0 सॉरी 0 D 0 D00 0 क्या करना है, मुझे भी लैब लेनी है। ओके, टॉपिक आती है ना 2 बजे। 2 बजे तक। सर D00 D000। So this will be the outputs. Okay. Now Y3 का एक्सप्रेशन क्या होगा, S1 dash S0 S1 S1 S0 D। देखो ये तो 0 से सब मल्टीप्लाई होने वाले हैं, देखो ये 3 तो 0 से मल्टीप्लाई होंगे, S1 बार S0 बार इंटू 0 तो 0 हो गया, S1 बार S0 इंटू 0 वो भी 0 हो गया, S1 इंटू S0 बार इंटू 0 वो भी 0 हो गया, S1 S2 इंटू D वो आएगा Y3 में, बाकी सब तो 0। Y2 क्या होगा, S1 Y2 S0 S1 S बार और S1 S0 बार S0 D यस सर जी। Y1 क्या होगा, S1 डैश S1 बार S0 S0 Y D D और Y0 होगा दोनों पे बार मल्टीप्लाइड बाय D, दोनों को S1 बार। बार S0 बार D। ठीक है, अभी पढ़ाते समय सब इजी लगता है बेटा, लेकिन एग्जाम के टाइम सब डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते। ठीक है, सो एक रिक्वेस्ट है, आज की टॉपिक आज ही रिवाइज करना, ये जो टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं आप इसके एमसीक्यू और सारे आज ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं चलता कि हमको कितना आया कितना नहीं आया। सर मिड सेम में से इससे क्वेश्चन आएंगे ना सर? हाँ, ये सब सेकंड चैप्टर इसी को रिवाइज करा रहा हूँ। सर फर्स्ट यूनिट भी आएगा क्या सर? फर्स्ट यूनिट का छोटा सा पार्ट है, वो बताऊंगा कौन सा आएगा। लो आंसर करो। 1 too many सर। One too many, sir. Yes, sir. वन टू मैनी सर इसका होगा P। ये सर ये होगा सर ये। यस सर P। हेलो, सर सी हो सकता है सर, सी भी सर। यस सर। डिस्ट्रीब्यूटर सर सी भी है एक ही मिनट। सर, सी होगा सर मेरे ख्याल से। सर क्वेश्चन दिखाइए एक बार और। डी होगा सर, दोनों होगा। Yes, sir. D. ये सर डी यस होगा सर T सर। होगा एज वेल।
सर आप ऑडिबल नहीं है सर। डी होगा, डी। वन टू मैनी भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, दोनों है वो। हेलो, यस सर, यस। हाँ जी सर, जी एक्सर सर। फाइव है, डी होगा। डी होगा। सो व्हाई डीमल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूटर? ए सी होगा इसका। ए C सर। sir. C sir. सी क्यों होगा? द इनपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द आउटपुट्स, द आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द इनपुट्स। दोनों सेम है सेंटेंस। द इनपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द आउटपुट्स। एक इनपुट होगा, वो ये किसी होगा एक सर। का आउटपुट होगा, तो ए होगा। Yo. Yes, yeah. मोस्ट ऑफ Yes. द डीमल्टीप्लेक्सर फैसिलिटेट विच टाइप ऑफ कन्वर्जन? देखो कौन सा कन्वर्जन करते हैं। सिंगल इनपुट मल्टीपल बी आउटपुट। बी सर, डी बी होगा। सर, बी। बी। हाँ, in 1x1 to 4 Two, sir. multiplexer, दो। how many selection lines? Two. टू। दो। टू। The multiplexer output depends on Data input. data Selection. input, सॉरी, डाटा data इनपुट। input. Select inputs. Select inputs. Select input. 1 to 4 multiplexer C1 equals to 0 and C2 equals to 1. Then output will be Y1 demultiplexer होगा, Y1, Y1. Y1. In 1x4 demultiplexer, ये multiplexer है, सब Y3. demultiplexer होंगे। Y3. C1 equals Y3, to Y3. how many selection lines are required to 1 to 8 Sir, multiplexer? three. Demultiplexer. Three. Three, sir. 3 How many AND gates are required in 1 to 8 multiplexer? Sir, three. दो। Three, sir. AND गेट कितने चाहिए? 4 चाहिए। 8 चाहिए, अच्छा। 8। जितने आउटपुट उतने डी चाहिए होते हैं, ये रहे। यस सर। बस तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर से। ओके, नाउ यू कैन टेक another 2 minute break, then I will continue with other topics. Adder, subtractor, encoder, decoder, ये 4 बाकी है, वो चारों खत्म करने हैं। कंपैरेटर सर। सर। हाँ, कंपैरेटर लास्ट में है तो वो देखेंगे। कंपैरेटर तो इजी है, वो सबने किया है काफी बार। सर दो ये बार शुरू रिवाइज से हो रहा है सर। सर शुरू से पढ़ा, शुरू से रिवीजन करा रहे हैं। हाँ, सिर्फ के मैप छोड़ा है। के मैप तो आप कर सकते हो इसलिए। जी सर।
हेलो, Yes, sir. यस सर है यहाँ पे। चलो। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. एडर कितने टाइप के एडर्स होते हैं? 2 सर। कौन कौन से? हाफ फुल। 2 Half full. half and full. First half adder, second will be full adder. ठीक है, ये होते हैं एडर। ठीक है, now half adder, it is having 2 inputs and 2 outputs. So AB will be its inputs, sum and carry out will be the output. So 2 input है तो 4 possible combinations, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So if you add 0 0, you will get 0 sum 0 carry. So 0 plus 0 क्या होगा? आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे भी 0 होगा। तो ये वाला जो सेम लाइन में आता है वो सम होता है, और जो नेक्स्ट में आएगा वो आएगा कैरी। तो 0 plus 1, so 0 plus 1 you will Someone get on 0. 1, sum 1 carry 0, 1 plus 0 ये सेम ही रहेगा, तो 1 Someone 0 carry. sorry 1 plus 1 Someone carry 1. Someone carry 0 1. plus 1, so यहाँ sum will be 0, carry will be 1, sum will be 0, carry will be 1. You can prepare the K-map, you can find the solutions. S will be A exclusive or B, C out will be एंड गेट। A and B. ठीक है, ये हो गया। तो सर्किट डायग्राम बना दो, हो जाएगा फुल एडर। सेकंड तीन इनपुट 2 आउटपुट, A B C in, sum C out। सो पहला 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। फुल आउटपुट 0 0. 0 0 1 0. 1 0 1 0. 1 0 0 1. 1 0 1 0 1. 0 1. सॉरी। तो इसका के मैप बना के इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशन आएगा S इक्वल्स टू A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C, और C आउट का आएगा AB प्लस BC प्लस C मतलब C ही नहीं है, कुछ और। ठीक है, के मैप सॉल्व करके आप कर सकते हो, इसमें हो जाएगा। सो क्विज देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 2 sir. थर्ड क्वेश्चन एडिशन। Addition. फोर्थ क्वेश्चन। एडिशन सर। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन। ए एक्स और बी। And सी, ऑप्शन सी। सी। फिफ्थ क्वेश्चन। एंड ए, ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन। फुल एडर में क्या होता है, और जो हाफ एडर में नहीं है, क्या नहीं है हाफ एडर, कौन सा इनपुट नहीं है? सी सर। कैरी इन। तो कैरी इन कहाँ से आता है? पिछले स्टेज से। सो अरे भैया हाँ, सो
except say carry bit from the present state, except a carry bit from the next stage, except the carry bit from the previous stage. So, कौन सा आंसर होगा? C. प्रीवियस। So वो previous stage से carry accept कर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें carry है ही नहीं, तो कैसे करेगा कैसे? 7th, सी सर। जी सर। 8th, ए अभी एक्स और लिखा है। बी एक्स और सी, ऑप्शन सी। हाँ, ये 9th गलत है। 10th वो तो बना के देखना पड़ेगा आपको कितना होता है, ठीक है, उतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। सो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं फुल एडर हाफ एडर से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, सर। sir. सर हाँ बोलो। सर हमारी थर्ड मिड सेम की एग्जाम सर ये 1 दिसंबर से है क्या? 1 दिसंबर? पता नहीं बेटा, पता चलेगा तो बताऊंगा। मेरे को अभी सेकंड मिड की डेट ही है, आपको पता है खाली। थर्ड मिड सेम क्या होगा? थर्ड मिड से थर्ड होगा मिड से होगा क्या सर? नहीं, थर्ड सेम सेम। स्टार्ट कब से होगा वो पता नहीं है अभी। फिर इसका एग्जाम कब से होगा पता चला है कुछ आपको? नहीं अभी तक कुछ टेंटेटिव डेट्स नहीं आई है। और सर क्लोज कब करना है ये भी आपको कुछ पता होगा? 14 नवंबर बोला है लास्ट, 7 नवंबर। अभी तो अपना आपका सिलेबस चले, बहुत पीछे है ना सर? 2 चैप्टर बचे हैं, मैं खत्म कर दूंगा 14 नवंबर से। सर लैब में हाँ। नहीं चाहिए सर, लैब में चैप्टर। हाँ अब लैब्स इसलिए तो आज पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक सर आपके लेक्चर नहीं है। सर वेडनेसडे को अपना फ्री है। सबको सब क्लास में पूरी क्लास होनी चाहिए ना, मेरे को मिलनी चाहिए तब तो मैं पढ़ा Yes. सकूंगा लेक्चर लेंगे। हाँ आप उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो मैं कंप्लीट करके जाऊंगा, आप वो टेंशन मत लो। सर ठीक है। 7 नवंबर के बाद क्लास बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं चलेगा, आपका क्लास चलेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि आप पे अभी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको लेक्चर चालू है तो आपका चलेगा, अभी दिसंबर तक चलेगा। सिलेबस खत्म होने के बाद भी सर? हाँ चलेगा। किसी सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो गया है? डीबीएमएस सर। यस सर, ईटीसी और DBMS डीबीएमएस का सर। खत्म हो गया। यस ओके सर। ठीक है, मैं उनसे लेक्चर्स ले लूंगा अभी, ऐसा ठीक है। मैथ भी खत्म होने वाला है। हाँ दोनों से मैं लेक्चर लेके हो खत्म गया कर है, दूंगा, केवल फोटो रिवीजन होगा। आप उसकी टेंशन मत लो, मैं खत्म करके रिवीजन तो मैं करवा ही रहा हूँ, इसलिए सेकंड चैप्टर आज रिवाइज हो गया। अब अभी स्टार्ट करूंगा थर्ड Yes, चैप्टर, तो वो रिवीजन भी साथ साथ कराते रहूंगा, लैब में रिवीजन कराऊंगा और लेक्चर्स में आगे बढ़ाऊंगा, बरोबर सर। ठीक है। ओके तो अब सबट्रैक्टर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। सबट्रैक्टर ठीक है, कितने टाइप के सबट्रैक्टर हो सकते हैं? आगे 2 टाइप के हो सकते हैं, तो हाफ एंड सेकंड वन इज फुल, ठीक है। तो पहले हाफ सबट्रैक्टर देख लेते हैं। ए बी डिफरेंस बोरो, सो 0 0 क्या होगा? 0 सर, 0 ही होना। 0 0 0 1 1 0 सर 1 1 1 1 0 0 0 होगा, बोरो आउट भी 0 होगा। 0 0 -1 -1 होता है, 1 -0 1 होगा, 1 -1 0 होगा। तो जहाँ पे भी माइनस आए उसको हटा के बोरो 1 कर देना है। माइनस सर बोरो लेने उसने, बोरो लेने हाँ वहाँ पे। यहाँ पे बोरो लेंगे, बाकी सब में 0 के मैप से फाइंड करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया हाफ। फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे। ए बी, थोड़ा बी दूर लिखो, फिर डिफरेंस एंड बोरो आउट। तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। पहले a माइनस बी कर देते हैं। 0 माइनस 0 क्या होगा? डिफरेंस बस बताते जाओ। 0 जीरो 0 0 जीरो 0 माइनस 1 वन माइनस 1 बोलना अभी। माइनस 1 सेवन वन माइनस वन 1 वन वन 1 वन जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये आंसर आ जाए। उसके बाद क्या करना है, जहां जहां पे माइनस है उसको हटा के वहां पे बोरो आउट 1 कर दो। तो यहाँ पे माइनस डिलीट करो और यहाँ पर 1 ऐड करो, यहाँ पे भी 1 ऐड करो और माइनस डिलीट करो। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि जहां जहां पर ये जो आंसर आया इंटरमीडिएट, जो ब्लू कलर में लिखा है, उसको ब्लैक कलर से माइनस कर दो। 0 माइनस 0 क्या आएगा? जीरो 0 0 माइनस 1 माइनस माइनस 1 1 बोरो वाले 1 लेने से वहां पे 0 जीरो पहले लिख लो ना। 1 1 0 जीरो 0 जीरो माइनस 1। 1 अब अगेन जहां जहां पे माइनस है उसको हटा के 1 कर दो बोरो में। यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे भी 1 कर दो और यहाँ से माइनस हटा दो। बाकी सर जगह पे हाँ बोलो। सर जो पहला बोरो है इसको क्या करेंगे सर? दोनों बोरो ही होते हैं। बोरो मतलब क्या है, एक लिया और दूसरे जगह से लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? हुआ तो बोरो ही होगा। सर वो सर अगले वाले इंटरमीडिएट में बोरो ऐड होगा। करना है क्या? अगले वाले में ऐड ऐड नहीं करना है, माइनस करना है। मतलब सर हाँ बोलो। सर जहाँ पहले से ही सर बोरो 1 1 आप ब्लू में लिखे थे सर, अगर मान लीजिए वहीं पे -1 आ गया फिर से डी वाले में, तो सर हाँ। वो माइनस फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पे आए तो सही, ये तो आए थे -1 ये तो आया था, तो उसको हटा के यहाँ पे बोरो लिखा। नहीं नहीं सर, ये ब्लू में जो आप इधर इंटरमीडिएट आउटपुट लिखे हैं ना सर, ए और बी हाँ का, हाँ सर उसमें तो -1 था, तो आप यहाँ सर बी आउट में 1 1 लिख दिए, ठीक है हाँ हाँ। सर। फिर जब इंटरमीडिएट और बी इन के सर एक मिनट हम बेटा, यहाँ पे मैंने आठों के आठों केस लिखे हैं, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं वैसे होगा ही नहीं हर्षित। फाइनल के जितना ही आप नहीं होगा इससे ज्यादा है। केस। इससे ज्यादा केस बन नहीं सकते, हमने सारे केस लिखे ही हैं। ठीक है, वो तो मैंने आपको याद करने का Yes, sir. तरीका बताया। आप वो मत बोलो कि ये ऐसा होगा, वो सिर्फ ये याद करने के लिए कि आपको इजी रहे एग्जाम में। हाँ, फुल सबट्रैक्टर जब भी पूछते हैं तो 80% बच्चे गलत लिख के आते हैं, क्योंकि उनको याद करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारने से अच्छा है ये जो समझाया इस ट्रिक से करो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके। लास्ट एनकोडर एंड डिकोडर। जैम बोर्ड बंद कर रहा हूँ, दूसरा जैम बोर्ड ले रहा हूँ। सर बोलो मनीष। सर सर हमारा डाउट सर इनकोडर से था सर, और डिकोडर से ही, जो पिछले लैब में हुआ है। हाँ तो करा ही रहा हूँ ना अभी। सारे टॉपिक्स का तो कंप्लीट करा देने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। तो बच्चों को प्रॉब्लम एनकोडर और डिकोडर में रहती है, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर और एनकोडर और डिकोडर दोनों मिक्स कर देते हैं। दोनों मिक्स मत करना, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है और एनकोडर में सिंगल आउटपुट नहीं होगा, मल्टीपल लाइन्स होंगी। सो 4 इनपुट्स 2 आउटपुट्स, सो 4 क्रॉस 2 लाइन एनकोडर। अब यहाँ पर ये अगर ये n है तो ये होगा 2⁻n। ठीक है, दैट विल बी m इनपुट्स। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। Okay, so line encoder is having a property that there will be only single one in one column and one row. एक रो और एक कॉलम में एक ही वन हो सकता है। ठीक है, तो अब पहले इनपुट्स एंड आउटपुट बना देते हैं। I3 I2 I1 and I0।
और आउटपुट कौन सा है, 2 है, y2 और y1 और y1 और y0। तो पहला इनपुट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्बिनेशन मैंने बोला कि एक वन यहाँ आ गया तो पूरे में कहीं 1 नहीं आ सकता, ये पूरे रो में 1 नहीं आ सकता, ये पूरे कॉलम में 1 नहीं आ सकता। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो पहले तो इनपुट फिल कर लो ऐसे कि इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन खुल जाए। ठीक है, ये बन गया सारे कॉम्बिनेशन। यस सर। पूरी Yes, रो sir, और yes. कॉलम में एक ही 1 होने का। ठीक है, अब अगर I0 पे 1 आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पर 0 0। तो एक्चुअली ये 1 को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ये I0 को कन्वर्ट कर रहा है। तो I0 अगर है तो I0 मतलब 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। ये एक ऐसी चीज है जैसे कि यहाँ पर रविंद्र खड़ा है, यहाँ पे मनीष खड़ा है, यहाँ पे कोई और स्टूडेंट खड़ा है, यहाँ पे कोई और स्टूडेंट खड़ा है। तो मैं 0 0 बोलूँ तो क्या बोलेगा रविंद्र, यस सर। 0 1 बोलूँ तो क्या बोलेगा मनीष, बोलेगा यस सर। तो आपको आपका कोड पता होगा कि ये 0 0 कोड मेरा है, 0 1 कोड मेरा है, 1 0 कोड मेरा है, 1 1 कोड मेरा है। अगर क्लास में 4 ही स्टूडेंट होते तो मैं चारों को 4 कोड देकर असाइन कर देता। तो उस तरीके की ये टेक्निक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. इससे फायदा क्या होगा कि मेरे को मनीष को भेजना, मनीष का नाम भेजना है तो मनीष का नाम भेजने के लिए मेरे को पूरा मनीष लिख के नहीं भेजना पड़ेगा, मैं खाली 0 0 भेज दूंगा। तो 0 0 भेज दूंगा तो डिकोडर को पता होगा कि हाँ 0 0 मतलब मनीष होता है, तो वो डिकोड कर लेगा। तो ये इस तरीके के फंक्शन की तरह से बनाया गया है। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें अगर 4 इनपुट है तो 16 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, पर कितने कॉम्बिनेशन बनाए हमने यहाँ पर, केवल 4। Yes, sir. हाँ, तो बाकी सारे कहाँ गए? तो बाकी सारे इनवैलिड है, वो आप नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो आप इसका के मैप भी नहीं बना सकते, अगर सारे कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप के मैप भी नहीं बना सकते। तो आंसर कैसे लिखना है, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, y1 इक्वल्स टू ये 1 को फॉलो करना है। ये 1 कहाँ क्रॉस सेक्शन करता है, इस 1 को यहाँ पर, फिर ऊपर जाओ, ये क्या क्रॉस किया I1, तो y1 इक्वल्स टू I1। यहाँ पे भी 1 है y1 में, तो ये क्रॉस करो यहाँ से और ये क्रॉस करो ऊपर, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है I3, तो सॉरी ये I2 है ना, I2 प्लस I3 will be your expression for y1। Same y0 you can find, ये 1 कहाँ है, एक तो यहाँ है और एक 3 में है, तो 1 और 3, so I1 plus I3 will be the expression for I0। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया आपका एनकोडर। इसका उल्टा करोगे तो डिकोडर, मतलब जो y0 y1 लिखा है वो इनपुट में लिख दो और I3 I2 I1 और I0 आउटपुट में लिख दो। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ही इनपुट है, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन बनाया तो आप के मैप बना सकते हो। तो I3 का के मैप बना लो, I2 का के मैप बना लो, I1 का के मैप बना लो, I0 का के मैप बना लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया इनकोडर डिकोडर। आप पूछो कुछ, क्या था मनीष? सर पैरिटी इनकोडर सर। प्रायोरिटी इनकोडर में क्या है, ये अब ये जो इनकोडर पढ़ा इसमें एक प्रॉब्लम देख रही थी कि इतने सारे इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 आए तो क्या करना है बताओ, ये कॉम्बिनेशन इसमें आया तो क्या करूं, नहीं पता ना मेरे को। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर डोंट केयर ले लिया। सब बाकी सब कुछ सेम रहता है, एक्सप्रेशन सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डोंट केयर कंसीडर होगा, दैट्स इट। तो क्या होगा, जो इनवैलिड कॉम्बिनेशन थे वो नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर जो एक ही इनवैलिड कॉम्बिनेशन रहेगा 0 0 0 0, ये वाला रहेगा, इसलिए प्रायोरिटी इनकोडर बनाया गया। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, सो वी विल स्टॉप नाउ, इट्स एनफ फॉर टुडे। अब आपका एक ही टास्क है, आपको सब जितने भी टॉपिक आज किए वो रिवाइज करो पहले, आज के दिन के आज किए, और उसके बाद नेक्स्ट में अभी कल आपका एक लेक्चर होगा, अगर नहीं होगा तो इवनिंग में मेरे को लेना है, तो वो इवनिंग में आपको पूरा रिवाइज करा देना है, तो आप फिर एमसीक्यू के लिए रेडी रहोगे। ठीक है,
सर वो वाली एक चीज बता दीजिए सर। बोलो। यूनिट फर्स्ट का। सर चैप्टर 1 में, सर चैप्टर चैप्टर 1 में मिड वाला जो, हाँ वो मैं कल बताऊंगा ना, मैंने बोला तो सही, कल मैं उसको बताऊंगा क्या क्या करना है। थ्योरी है, थ्योरी में बताऊंगा कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है सर। ठीक है कल ओके। सर लेक्चर नहीं है शायद आपका। हाँ परिश्रम में लूंगा फिर। रविंद्र प्रेजेंट। हर्षित, तो सर का लेक्चर है यस सर, आप सर। यहाँ ऋषभ, ऋषभ यस बोलो, प्रेजेंट बोलो, कुछ तो बोलो। विपुल, यस सर। जयशंकर, हेलो, यस सर। हाँ सर आ रहा हूँ 5 मिनट खत्म हो गया। जयशंकर, अभिषेक, यस सर। अविनाश, यस सर। राजकुमार, यस सर। अमोद, मणिरत्ना, सुनीता, यस सर। सोनाक्षी, यस सर। शिल्पी, यस सर। निधि, यस सर। सोनू, यस सर। यस सर। उमंग, विनय, यस सर। श्रवण, विनय, श्रवण, सर विनय प्रेजेंट सर। प्रेजेंट श्रवण, सर। श्रवण, श्रवण कुमार। विक्की, प्रेजेंट सर। राहुल, यस सर। आलोक, सदाशिव, पूर्णिमा, यस सर। शिबू, okay. So be ready for tomorrow. Okay, so once you complete your Constitution of India lecture, then let me know so I can take your lecture at that time. Okay. सर हेलो सर, हाँ, राहुल बोलो कुमार मनीष। सर। हाँ राहुल। सर मेरा सर डाउट क्लियर कर दीजिए ना सर, वो जो था सर, वो सिमुलेशन में सर डाउट था एक। हाँ बोलो, करो, बताओ, प्रेजेंट करो, बता देता हूँ। था ना। सर विजिबल है सर? हाँ हाँ विजिबल है, बोलो। ओके सर। सर इसका सर आउटपुट सर कैसे आएगा, ये वाला समझ नहीं आ रहा सर। अरे तुम पहले पावर सप्लाई ऑन करो। हो गया सर, ऑन हो गया सर। हो गया, ठीक जी है। सर। अब क्या करना है, हाँ यहाँ पर अभी D0 को 1 करो, ठीक है, तो 0 0 आउटपुट आएगा। अब D0 को 0 कर दो, D1 को 1 करो, 0 1 आएगा। 0 1 आ गया, इसको फिर 0 कर दो, D2 को 1 करोगे तो 1 0 आएगा, और D3 को 1 करोगे तो 1 1 आएगा। जो अभी पढ़ा वही। सर कितने का सर? सर इसमें 8 करना है या 4 या 16 करना है? अरे 4 ही होंगे ना भाई, तो 4 ही होंगे। प्रायोरिटी। हाँ तो 4 ही केस, तो अभी कितने केस पढ़े तूने? 4 सर। हाँ तो वही 4 केस बने हैं यहाँ पर। सर इसी में सर दिक्कत है मेरे को, किसी क्या कि सर यहाँ पे 3 दिया हुआ है सर्किट, और मतलब कि स्विच दिया हुआ है 3, और इसमें आउटपुट कितना आएगा, इसी में सर दिक्कत है मेरे को। हाँ बस, तो यही 4 ही केस बनेंगे, यही 4 केस बनेंगे। हो गया, सर। ओके ओके। सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। राजकुमार। हाँ